Hey viewers, you're watching The Savera and I'm Vidhi Joshi. A 100-foot tall mobile tower collapsed in South Delhi's Safdarjung enclave during the early hours of today, following a powerful thunderstorm accompanied by heavy rain in the national capital. The incident occurred at around 4 a.m. when strong winds swept across the city and gusty winds accompanied by rain hit the area. Fortunately, no casualties or injuries were reported. Local resident, namely Meenu Kapoor, said that their house is just behind where the tower fell at around 4 a.m. It's God's grace that it fell away, otherwise anything would have happened to the family. We asked the government to remove the towers or let them be in the way of people. Then they will realize they lied to us, saying that a street light is being installed, she further mentioned. Aam Aadmi Party leader Somnath Bharti visited the site and sharply criticized the authorities for ignoring repeated objections from residents regarding the tower's installation. This tower was erected despite heavy protest. If it had fallen during the day or on the residential side, the loss would have been unimaginable, he added. Bharti alleged that the tower had been illegally installed in a residential zone, adding that multiple appeals were made to the MCD, police and elected officials, but no action was taken. The India Meteorological Department confirmed that 2 intense thundersqualls hit the Safdarjung area with wind speeds peaking at 104 km per hour. The weather system also brought hailstorm activity to parts of Delhi, temporarily disrupting traffic and causing waterlogging in low-lying areas. The IMD had earlier issued a severe thunderstorm and strong wind alert for the city, warning residents to stay indoors and avoid unnecessary travel due to risk from flying debris and low visibility. The storm brought much-needed relief from the extreme heat wave conditions that had gripped Delhi, with temperatures soaring above 45 degrees Celsius earlier in the week. Delhi received a welcome shower of relief on Sunday from the recent heat wave, with parts of the city experiencing rainfall, bringing down temperatures and improving air quality. मेरा नाम मीनू कपूर है। ये जो टावर गिरा है उसके जस्ट पीछे हमारा घर है, पर अब ये देखते हैं ये रात को 4 बजे गिरा है। ये तो भगवान की कृपा थी, हमारे पर भगवान का आशीर्वाद था कि ये दूसरी साइड में गिरा। अगर ये उस तरफ गिरा होता, सोचो मैं, मेरे बच्चे, हम, मेरी फैमिली सोए हुए थे तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हम तो ये सरकार से प्रार्थना करते हैं। पहले भी हमने बहुत अपोज किया लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी, तो अब यही है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। हम तो कहते हैं यहाँ पे लेटा है तो लेटा ही रहने दो, कि यहाँ पे अब सबका रास्ता बंद हो, जब तक पता चले। आगे जब ऊपर जाके जब सब कंप्लेंट करेंगे तभी सरकार को पता चलेगा कि इतना करने। ये नाला है, नाले के ऊपर बना है। झूठ बोलकर बोला कि यहाँ पर लाइट लग रही है, पर वो तो भगवान हमारे साथ थे। हम तो गुरु जी का आशीर्वाद करते हैं, तो यहाँ पर ना लगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अब ये यहाँ पर गलती से भी इंस्टॉल नहीं लगना चाहिए। बहुत बड़ी लड़ाई थी, बिल्कुल नहीं, हमने एकदम हार गए उस लड़ाई में, और हम सभी की यही दोबारा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए प्लीज। आज की लड़ाई भगवान ने जिताई है। भगवान ने जिताई है, बिल्कुल भगवान हमारे साथ है, हम सबके साथ है। हमने इतना अपोज किया, फिर हम हार गए कि भगवान जी आप तो हो ना, तो भगवान ने ही हमारी रक्षा की है, वरना सोते सोते हम 2 फैमिली चले जाते, साथ दोनों घर चले जाते। पान वाला बैठता है, उसके पास 15-20 लोग बैठे थे। अगर ये आज दिन में गिरता या वर्किंग डे में गिरता तो आप सोच सकते हो कितनी जाने जाती। एक जान की कीमत है, यहाँ तो हजारों जाने जाती। ये रास्ता इतना चलता है, ऑटो स्टैंड है रोज। मेरा नाम हेमा धनराजानी है, B272 में मैं रहती हूँ, यहीं पर सामने यहीं पर सेकंड नंबर इनका फर्स्ट है, सेकंड कॉर्नर से मेरा घर है। और सुबह 4-4:15 बजे के करीब ये पोल गिरा है। और अगर हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना मतलब हमको पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, कोई किसी ने भी, किसी MLA ने, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कोई थोड़ा बहुत गाइड किया, सोमनाथ भारती जी ने हमारे को यहाँ पर आके, जबकि उनका कोई मतलब लेना देना भी नहीं इसमें, मगर उन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी। मगर अदरवाइज किसी ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। और पुलिस को बुलाया हम लोगों ने तो उल्टा हम लेडीज पुलिस लेकर आ गई, तो उनके सामने हम कहाँ खड़े होते हैं, हम लोग वापस चले गए। और हमने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है इसके अगेंस्ट। और 4 तारीख को फिर दोबारा स्टे की उन्होंने डेट दी थी, तो हियरिंग है उसकी। तो कुछ भी हो सकता था, ये जरूरी तो नहीं है कि कोई जान जाती तो उसके बाद ही एक्शन लिया जाए। जो है वो MLA सर के पास भी गए थे, तो जो ये कंपनी लगा रही है उसके पास एक लेटर है जिसपे जो है इसको लगाने की परमिशन है, पर उसको जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता था कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा नाला है जो मुनीरका से होते हुए जो है एम्स में जाके गिरता है।
जिससे पहले भी लास्ट ईयर जो है इसी नाले की वजह से कृष्णा नगर में भी डिजास्टर हुआ था, जब उसके चैम्बर्स खुल गए थे और पानी जो है वो भर गया था। इतना वीक इसकी फाउंडेशन बनाई गई है। और जो है ये जब ये लगाया गया था तो पुलिस प्रोटेक्शन जो है, लेडीज पुलिस आई थी जिसने जो है इसको जबरदस्ती यहाँ पर लगाया था। उसके बाद जो है सोमनाथ भारती सर जो है रेजिडेंट्स को लेकर कमिश्नर के पास लेकर गए। वो था जो है 20 मई को जो है कमिश्नर के पास गए थे, रिक्वेस्ट दी गई थी कि इसको ना लगने दिया जाए रेजिडेंशियल एरिया में। रिक्वेस्ट भी करी गई कि आगे जो है डियर पार्क के पास जगह खाली है, अगर आपने लगाना है तो उसको वहां पर जो है इसकी रिप्लेसमेंट करी जाए, पर कंपनी रेडी नहीं हुई। वो पुलिस को लाके जबरदस्ती फोर्सफुली उसने ये टावर यहाँ पे खड़ा किया और जो है ये सब लोग जो है मना करते रहे पर ये नहीं माने कंपनियों। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जब एमसीडी की लैंड यूज होती है उसमें एमसीडी काउंसलर की जो है एक परमिशन लेटर होती है। इनके पास एमसीडी काउंसलर की कोई परमिशन लेटर नहीं थी एमसीडी लैंड पर ये बनाने के लिए। इन्होंने 3 महीने के लिए एक लॉ निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि एमसीडी काउंसलर की परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिना परमिशन के ये जो है इसको यहाँ पर वो क्लॉज हटाकर जो है इसको करा गया था। ये लगा है 20 मई को हमने कमिश्नर को रिक्वेस्ट दी थी कि इसको रोक दिया जाए। उसके बाद ये जो है 3-4 दिन के बाद यहाँ पुलिस फोर्स आई है और उसके बाद ये टावर लगा है तकरीबन 25 मई के आसपास। देखिए, बहुत दुखद है इस प्रकार की घटना घटी है, लेकिन सुखद ये है कि मोबाइल टावर उस दिशा में नहीं गिरा जहां लोग रहते हैं। मैडम कपूर यहाँ खड़ी हैं, इनका घर इसके जस्ट पीछे है। अगर इसकी दिशा उस तरफ होती तो कितना जान माल का नुकसान होता उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर ये दिन में हुआ होता तो कितने लोगों की मौतें होती इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये मोबाइल टावर सब नियम कानून के विरोध में लगा। रेजिडेंट्स यहाँ पे लगातार कहते रहे, सबसे मिलते रहे, सबसे मिन्नतें करते रहे। मैं इनके साथ गया, एमसीडी से आके मिला, लेकिन वो नहीं माने और यहीं पे सबके इच्छा के विरोध में मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। हमने कहा कि भाई ह्यूमन हैबिटेशन है, जनता रहती है, एक तो रेडिएशन का चक्कर तो है ही, लेकिन साथ में अगर किधर उधर हो गया तो क्या होगा। वही हुआ जिसका अंदेशा था, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है कि ये गिरा दूसरी तरफ। और आज हम मांग करते हैं कि क्षेत्रीय विधायक भी, उनके पास भी लोग गए थे, उन्होंने भी ना सुनी। जो एमसीडी के लोग थे उन्होंने भी ना सुनी, पुलिस ने भी ना सुनी। कहते हैं कि एमपी के पास भी गए थे, उन्होंने भी ना सुनी। तो अब कहाँ जाएंगे? अब तो भाई हर तल पे आपकी सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, स्टेट में भी आप हैं, एमसीडी में भी आप हैं। अब जनता कहाँ जाए? अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं सबको लेके गया था कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने आदेश भी दिया, लेकिन पता नहीं किस ताकत में उन्होंने फिर हमारा काम नहीं किया। तो आज हम मांग करते हैं कि जो लोग भी इसके लिए दायित्व है जिनका था, उनके खिलाफ एक्शन हो, एफआईआर हो। दिस इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर, इट्स नॉट एन इजी थिंग। ये तो बचाव हो गया, अलग बात है, लेकिन अगर ये उल्टा हुआ होता तो इमेजिन करके देखें क्या होता। ये तो दूसरा अहमदाबाद था। इसलिए हम सब आज बहुत संकोच में हैं कि किससे क्या बोलें, लेकिन हम मांग करते हैं इस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि एक तो यहाँ पे नहीं लगेगा और पूरे दिल्ली में जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन हो वहाँ मत लगाइए, हैबिटेशन के से दूर लगाइए, वहाँ लगाइए जहाँ के लोग नहीं रहते। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.